when dielectric slab is introduced between its plates. So capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab is introduced between its plates. ठीक है, सो ਅਸੀਂ कैपेसिटर पढ़िया सब तो पहला, ठीक है। सो कैपेसिटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਆ, ठीक है, तो ਇੱਥੇ दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इस टाइप में। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कनेक्ट करता अक्रॉस दिस प्लेट, तो इत्थे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरी साइड दे ऊपर जिहड़ा हैगा आ वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, इस टाइप में, ठीक है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਤਾਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਸੀ, तो ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, इलेक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन केड़ी है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये असी सिंबॉलिकली की लिखते हैं ई नॉट, ठीक है। सो ई नॉट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स। और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो अपने कोल कितना हो गया डी, स्मॉल डी, ठीक है। सो जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया डी, स्मॉल डी, बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल च की रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, E is equal to minus dV over dx. so E is equal to minus dV over dx, तो मैग्नीट्यूड च आपां नूं की लिखांगे E is equal to V over D, ठीक है। सो लिखियो जी, consider a parallel plate capacitor of capacitance C, each plate has area A, each plate has area A. The two plates are separated by distance d, small d. The two plates are separated by distance d. A battery of voltage V, a battery of voltage V is connected across the plate A. Therefore, charge is stored on it. Then, a negative charge is induced. A negative charge is induced on the outer side of plate B, which is grounded. Therefore, electric field intensity is given as E naught is equal to V over D. So, in magnitude. नोट कर ले जी सर, एक मिनट रुकियो। हाँ जी, डन जी। तो जो पोटेंशियल है एक इक्वल हो गया V, ठीक है। और E naught is the electric field intensity between the plates of capacitor. Therefore, capacitance के इक्वल है C is equal to Q by V, और V दी वैल्यू पुट कर, ठीक है। So
कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय V और V दी वैल्यू जो है वो E नॉट D। ठीक है, सो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ऑफ थिकनेस T, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब दी थिकनेस है वो कितनी हो गई T। हुण डाइलेक्ट्रिक स्लैब दे विच की है पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन दे विच की होया कि इधरली साइड दे ऊपर केड़ा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और दूसरी साइड दे ऊपर जेड़ा है वो की आ जाएगा, नेगेटिव। तो इत्थे की आ जाएगा, नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन सेटअप हो जाएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक ही हो गया EP। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, तो एक ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ E is equal to E naught minus EP। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट करिए। तो ਇੱਥੇ प्लेट A सी ते B सी, तो पहला की सी, प्लेट A एंड B, डाइलैक्ट्रिक स्लैब नहीं सी। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डाइलैक्ट्रिक स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस करती, तो डाइलैक्ट्रिक स्लैब दे विच पोलराइजेशन करके सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा, ਆਪਾਂ लास्ट टाइम पढ़िया सीगा। ठीक है, सो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होएगी एक ही होएगी, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस। नोट कर ले जी। So now a dielectric slab of thickness T is introduced between the plates of capacitor. Due to electric polarization, separation of charges will take place. Thus, reduced value of electric field is given as therefore electric potential is given as, ठीक है। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸਲੈਬ। ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸਲੈਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, T, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, E। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, E into T। ठीक है, इत्थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना हो गया, E into T।
ਜਿਹੜਾ ਆ वाला रीजन बाकी बच गया, ठीक है, तो बाकी कितना रीजन बच जाऊगा, d माइनस टी, d माइनस टी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इत्थे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, ठीक है। सो इसलिए ਜਿਹੜਾ टोटल पोटेंशियल है ये की हो गया, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, क्योंकि इस रीजन च इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई नॉट माइनस ई टी, और उन्होंने असी की लिख लिया, ई लिख लिया, ठीक है। सो ई इंटू टी, ठीक है। तो इत्थे साडे कोल जिहड़ा बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी रीजन कितना बच गया, डी माइनस टी, ते इलेक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा हैगा आ उत्थे अपने कोल कितना हो जाऊगा, ई, ठीक है। इस करके जिहड़ा पोटेंशियल हैगा आ, पहला पोटेंशियल कितना सीगा, ई नॉट इंटू डी, हुण कितना हो गया, ई नॉट इंटू डी माइनस टी ते ई इंटू टी, ठीक है। सो देयरफॉर कैपेसिटेंस इज गिवन एज, सो पोटेंशियल चेंज हो गया तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, क्यू ओवर वी डैश, तो वी डैश दी वैल्यू पुट करती ई नॉट इंटू डी माइनस टी, बाकी सारा जिहड़ा हैगा आ वो जस्ट रीअरेंजमेंट है, ठीक है। साडे कोल जिहड़ा पिछला है एक ही आया, C इज इक्वल टू Q ओवर E नॉट इंटू डी, ठीक है। सो आपां की करना कि पहला तो विदाउट डाइलैक्ट्रिक स्लैब जो है ओनू कंपेयर किया, ठीक है। सो विदाउट डाइलैक्ट्रिक स्लैब ये आ गया जो डाइलैक्ट्रिक स्लैब नहीं सी, ठीक है। हुण जो डाइलैक्ट्रिक स्लैब रखती तो इलैक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, पोटेंशियल दैट इज, हुण आपां कंपेयर करना C डैश ओवर C, इनू कंपेयर करना, जो कंपेयर करना Q दे नाल Q तो कैंसल हो जाएगा। दूसरा अपना पर्पस की है कि E नॉट V कैंसल हो, ठीक है। सो दैट साडे कोल सिर्फ थिकनेस दियां टर्म्स जिहड़ा हैगा ते डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट दियां टर्म्स च आंसर आ जाए। तो अगर असी इथों E नॉट कॉमन लिखांगे आ वाली इक्वेशन च E नॉट, तो इत्थे अपने कोल कितना बच जाना, D माइनस टी, D माइनस टी, ठीक है, प्लस हुण इत्थे ई नॉट तो है नहीं, ठीक है। सो ई नॉट नहीं है तो आपां कॉमन कर लिया तो ई ओवर ई नॉट ये आ जाएगा इनटू टी, ठीक है। जो साडे कोल इत्थे हुण ई ओवर ई नॉट है, तो बाय डेफिनेशन आपां लास्ट टाइम की पढ़िया सी, डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट दी की डेफिनेशन है कि it is defined as the ratio of electric field intensity in vacuum to that of the reduced value of electric field intensity when the vacuum is replaced by medium. So K जो हो गया एक ही हो गया E नॉट ओवर E, पर अपने को इत्थे की है E ओवर E नॉट, तो E ओवर E नॉट एक इक्वल आ जाएगा 1 ओवर K, ठीक है। सो असी पर्पस की है कि जिहड़ा आंसर है वो थिकनेस दियां टर्म्स च आ जाए ते डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट दियां टर्म्स च आ जाए। इस करके सानू इलैक्ट्रिक फील्ड जो है वो एलिमिनेट करना पैना। इलैक्ट्रिक फील्ड एलिमिनेट करन दे लई ई नॉट कॉमन कड्डांगे तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाऊगा, ठीक है। सो साडे कोल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो असी जिहड़े नैक्सट स्टैप्स हैगे आ वो जस्ट रीअरेंजमेंट है कि ई नॉट नू असी कॉमन लिख के ते डी नू कॉमन लिख के जिहड़ा आ वो आंसर अपने कोल आउणा चाहिदा है, ठीक है। जस्ट आपां कंपेयर करना है इक्वेशन 1 दे नाल ते बाकी जिहड़ा हैगा आ वो असी यूज करना, ठीक है। सो और तो E नॉट अगर असी कॉमन लिखिया तो E नॉट इत्थे कितना जाना, D माइनस टी प्लस E ओवर E नॉट, और जो डेफिनेशन है एक इक्वल हैगा आ K इज इक्वल टू E नॉट ओवर E, सो E ओवर E नॉट की हो जाएगा 1 ओवर K, ठीक है। सो नोट करियो, यानी नोट कर लिया जी। सर एक मिनट, हुण असी नेक्स्ट स्टेप च की करना है कि D कॉमन करना। जदों D कॉमन आएगा तो पहला
t ਕਾਮਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਕੀ ਹੈ d minus t, ਸੋ d minus t ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, ਇੱਥੇ ਸੀ ਪਲੱਸ ਟੀ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਕਾਮਨ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 over k ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ t ਕਾਮਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, t is equal to d 1 minus 1 over k। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ d ਕਾਮਨ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ e naught d 1 minus 1। So dividing 1 by 2, c dash is equal to c, so q over q naught। So from one equation 1 q over e naught d a ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ c ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। so c dash is equal to this। So if t is equal to d ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ d ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਆਏਗਾ। Second, when battery is connected ठीक है। So how the capacitance of a parallel plate capacitor will change when a dielectric slab is introduced between its plates। Introduced between its plates ठीक है। So ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ capacitance when a dielectric slab is introduced। तो जो capacitance ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ c dash is equal to k times c ठीक है। जो capacitance है c dash is equal to k into c। तो ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ capacitance जो है increase हो गई कि decrease हो गई ਜਦੋਂ dielectric slab ਪਾਤੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ increase। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल पेपर is introduced between the plates of the capacitor ठीक है ਜਿਹੜਾ ठीक है। तो capacitance ਕੀ ਹੋਏਗੀ increase। mica sheet is introduced between the plates of capacitor तो capacitance ਕੀ ਹੋਏਗੀ increase। तो capacitor ਦੀਆਂ plates ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖ ਦਈਏ say a metal slab is introduced ठीक है। तो capacitor ਦੀਆਂ plates ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ say copper ਦੀ slab introduce ਕਰਤੀ तो copper ਦੀ slab ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ capacitance ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ increase। तो ਜਦੋਂ ਵੀ capacitor ਦੀਆਂ plates ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ capacitance increase ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ nature of material ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੋ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ